This book will keep your expectations like really low. This book will open your brain completely. This book will help you understand the power in life. This book will help you understand plan and future planning. Hey guys, welcome back to the another video. Today we are going to talk about the philosophical books and how reading philosophical books changed my life completely. So philosophical books मैं बहुत कम पढ़ता था because I thought those are just philosophies, लोगों ने यहाँ वहाँ बनाई होगी, कुछ उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा. So that is a true story about me and उसमें बहुत कम interest था मेरा. So I never read a lot of philosophy books or the psychological books. But like 2 years back I got introduced to the philosophy books कि यार philosophy क्या होती है, different philosophies कौन से है, हर philosophy एक philosophy से अलग अलग कैसी है, कितनी सारी philosophies है लाइफ में. ऐसे बहुत सारी philosophies है जिसने मेरी लाइफ की थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दी. हाउ आई थिंक अबाउट द लाइफ, हाउ आई थिंक अबाउट हैप्पीनेस. सो दैट्स हाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट philosophy books changed my life, and I'm gonna talk about that in 4 different ways or 4 different steps or 4 different learnings. You can call it whatever you want to call it. So I'm going to talk about that in this video. So let's get into the video and let's start what I learned or how my life is changed after reading philosophy books. First one is perspective change. So लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही चीज को हम एक ही नजरिए से देखते हैं. वी नेवर सी कि उसको 360 डेज से 360 डिग्री से भी देखा जा सकता है. जो चीज आपके लिए बुरी है वो किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, जो चीज आपके लिए अच्छी है वो सामने वाले के लिए बुरी भी हो सकती है. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड हम लाइफ में कभी ये चेंज नहीं करते और हम लाइफ में कभी ये ट्राई ही नहीं करते कि वी नेवर पुट आवर सेल्स इन डिफरेंट शो और डिफरेंट किसी के शो में देख के उसके नजरिए से देखने के लिए हम कभी ट्राई ही नहीं करते. एंड व्हाइल रीडिंग द फिलोसॉफिकल बुक्स दैट आई रियलाइज्ड रियली वेल कि all universe is not about you. There are so many different perspectives, there are so many different ways, there are so many different thinking process, there are so many different learnings जो आपको पता चलेगी when you get into the philosophical books. So this is the first and the most important learning of my life की perspective change. जो चीज़ शायद मुझे अच्छी लगती है वो शायद सामने वाले को बुरी लगेगी. When I say कि reading slum is not good or when I say reading slum is not real, तो सामने वाला कह सकता है कि no, I am into the reading slum, I am getting into the reading slum, and that can be a different variety. So perspective अलग अलग हो सकता है, perspective बहुत सारे हो सकते हैं, and you will understand those perspective when you will understand the philosophy कि यार हर किसी की philosophy कैसी है to look at the world, to look at the different kind of scenarios. ये आपको तभी पता चलेगा when you read a lot of philosophical books. The second important learning after reading philosophical books is every emotions feel smaller. So if I go back to the college life, वहाँ पे सारे emotions because of the hormones and everything, सारे emotions की value बहुत बढ़ जाती थी. Let's say you feel happy someday, you feel like crying someday, you are in love in someday, किसी के दिन पे crush आ जाता है, किसी के दिन पे you get attached to the someone, और इससे बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में and we go through this each and every day. और ये बहुत सारी टाइम होता है. And to understand emotions you need to understand the emotional philosophy. Obviously that is not a term but a kind of a philosophy that is related to the our emotions, कि जिसमें emotions सारे explain किए गए हो, जिसमें सारे emotions के बारे में बात की गई हो कि happy emotions में क्या क्या होता है, sad emotions में क्या क्या होता है. Like there is one sentence which one of my favorite quote that you live more in imagination than reality. So हम imaginary world में बहुत ज़्यादा रहते हैं और imaginary world में जो भी emotions होते हैं वो सारे अपने life को affect करते हैं and reality में वो सारी चीज़ें कभी होती भी नहीं है. Let's say you have a crush on someone, let's say कि you like someone and you try to create a lot of scenario with that person कि यार मैं ऐसे करूँगा, मैं उसे ऐसे डेट पे लेके जाऊँगा, I will do these things for her or him, or I will do I will send these kind of messages, और whenever I meet him or her मैं ये बातें करूँगा वगैरह वगैरह. से बहुत सारे imaginary scenarios आप दिमाग में create कर लेते हो but reality में when it comes to the point आप उसमें से 0.1% भी नहीं कर पाते हो. So you live more in imagination than reality and you have to suppress that imaginary world and you have to bring back to the reality. उस टाइम पे philosophical books बहुत ज़्यादा helpful होगी. The way you understand is when you get into the philosophy or when you start reading the philosophy, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको explain की जाएगी. जैसे कि let's say if I talk about the book that is 4 Agreement, उसमें आपको बताया गया है कि about goal setting, about self love वगैरह वगैरह, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है.
एंड वो जब आप समझते हो तो इमोशंस की वैल्यू बहुत स्मॉलर हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि इमोशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, बट उसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाती है. जैसे कि आप उससे दूर जाते हो तो आप उसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाती है. सो द फीलिंग गिल्टी वाला इमोशन या फीलिंग ईगो वाला इमोशन, लाइक फ्यू ईयर्स बैक आई हैड अ ईगो इशू कि मुझे बहुत सारी चीजें खुद ऐसे दिल पे लगती थी. बट राइट नाउ आई डोंट थिंक अबाउट ईगो. लेट्स से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, आई डोंट माइंड. कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आई डोंट गिव अ डैम फक. क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या करना है, एंड आई एम फोकस्ड ऑन दैट जोन ओनली. सो व्हेन यू गेट इनटू द फिलोसफी, आपको इमोशंस की वैल्यू बहुत स्मॉल लगती है. लाइक यू डोंट गेट दैट फीलिंग, गिल्टी फीलिंग कि यार मैंने ये नहीं किया. यू डोंट गेट दैट स्टेटस फीलिंग कि यार मुझे एप्पल वॉच चाहिए, एप्पल के फोन्स चाहिए, देन आई विल फील हैप्पी. मुझे एप्पल के मैकबुक, बहुत सारी ऐसी चीजें है कि जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोगों को दिखाने के लिए है, वो सारी जब मिलेगी देन आई विल फील हैप्पी. दैट नेवर हैपेंस. एंड ये सब आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू गेट इनटू द फिलोसॉफिकल बुक्स. सो दिस इज माय सेकंड लर्निंग आफ्टर रीडिंग द फिलोसॉफी बुक. थर्ड लर्निंग इज गोइंग अवे टाइम टू टाइम. सो इसके बारे में मुझे अगर इलैबोरेट करना हो तो लेट्स से कि यू हैव अ फ्रेंड एंड ही इज गोइंग थ्रू द ब्रेकअप और शी इज गोइंग थ्रू द ब्रेकअप, एंड आप उसको बहुत सारी एडवाइस देते हो. आपको उसे बहुत सारी एडवाइस कि ये कर, वो मत कर, एक्स के पास मत जा, ये मत कर, वो मत कर, बहुत सारी एडवाइस देते हो. बट व्हेन इट कम्स टू यू, लाइक अगर आप उसी सेम पेज से जा रहे हो, देन व्हाई कांट यू डू इट? Why can't you do it? No one can do it actually, and that's the reason going away time to time helps a lot. So what I mean by go away time to life, so let's say you are staying in a home, you are staying here, and यहाँ पे आपका environment वगैरह सब कुछ आपको पता है, आपको सारी चीजें पता है, and you get into that zone की comfortable और familiar zone, और वहाँ पे you start thinking a lot. So that's the one of the reason I learned from the philosophy, going away. So दिस इज योर कंफर्ट जोन. तो इससे आपको दूर जाना है थोड़े टाइम के लिए. लेट्स से यू कैन टेक एनी ट्रिप टू आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर स्टेट, जहाँ पे आपको सब कुछ अनफैमिलियर लगेगा, सब कुछ सारी चीजें काइंड ऑफ जो उसने आपने कभी देखी भी नहीं होगी, वो सारी चीजें आपके सामने होगी. देन योर माइंड स्टार्टेड टू शिफ्ट कि आपको नई चीजें दिख रही है. देन दैट न्यू थॉट्स, न्यू चीजें आपके लाइफ में आती है और वो चेंज करके जाती है कि आपके इमोशंस को चेंज करके जाते हो. सो दैट्स द रीजन गोइंग अवे टाइम टू टाइम हेल्प्स अ लॉट. लेट्स से कि दिस इज मी और मैं कोई हार्ट ब्रेक से जा रहा हूँ या कोई चीज से जा रहा हूँ, तो आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक. में जहाँ पे रहता हूँ वहां से बाहर चला जाता हूँ, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए घूमने के लिए कहाँ पे तो चला जाता हूँ, या कंप्लीटली अनफैमिलियर जगह पे चला जाता हूँ, एंड आई गेट बिजी इन दैट जोन. तो उस जगह पे जब मैं बिजी हो जाता हूँ, आई डोंट गेट फ्री टाइम एक्चुअली. एंड जब फ्री टाइम नहीं होता, देन यू गेट अ लॉट ऑफ इमोशंस. You don't even get a lot of emotions. So that's the way you can deal with the life, or that's something hack you can use in your life. Last learning I learned is freedom from emotions. So there are so many books. The Courage to be Disliked is one of my favorite book in the recent times, which talk a lot about this ki how how you should deal with the feeling, or the name ही है, like book का name ही है The Courage to be Disliked. करेज टू बी डिसलाइक. अगर आपको कोई डिसलाइक करे तभी भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल बुक्स. आई वोंट से कि आपको सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, बट देयर आर लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स की जो आपको आपकी लाइफ को न्यू पर्सपेक्टिव दे जाएगी, और आपको इमोशनल से आपको फ्रीडम मिल जाएगा. सो व्हेन आई फिनिश्ड रीडिंग द करेज टू बी डिसलाइक, I realized that about a lot of my emotions are not my emotions, are because of a lot of circumstances, a lot of unnecessary thoughts, lot of unnecessary drama in life, उसकी वजह से. एंड इस सारी चीज़ों से फ्रीडम पाने के लिए फिलोसॉफी हेल्प्स अ लॉट. सो इट्स नॉट कि आपको कंप्लीटली डिटैचमेंट हो जाती है, बट दिस विल हेल्प यू टू लर्न कि डिटैचमेंट कैसे करनी है. अगर कोई भी बुरी चीज़ हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, उसको आपको डिटैच कैसे करना है, उसको आपके दूर कैसे रखना है. उसको अटैच होकर अगर रहोगे तो देन यू आर गोइंग टू कैरी दैट एवरी डे. लाइक आपको हर दिन उसमें कुछ ना कुछ इशू, प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाई देंगे. अगर वो आपको नहीं चाहिए, देन यू नीड इमोशनल फ्रीडम. और इमोशनल फ्रीडम, टू गेट इजी वे टू इमोशनल फ्रीडम इज टू रीड बुक्स. अदरवाइज यू कैन एक्सपेरिमेंट, बट कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, कौन से एक्सपेरिमेंट को फॉलो करना है, क्या उसके पीछे मीनिंग है, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होगी. एंड एज आई सेड, नॉलेज इज पावर, and the more power you have, the better person you will become. So the Courage to be Disliked is one of the book I will highly suggest to, if you want to get freedom for the emotional or the reality check in the real life. Then make sure you read this book, because this is going to help you a lot to get emotional freedom and to learn how to detach yourself from everything, whether it is anger, whether it is गिल्ट फीलिंग, ईगो फीलिंग, कोई भी ऐसी फीलिंग्स हो,
उसको आपको डिटैच करने के लिए आपको ये बुक डेफिनेटली हेल्प करेगी. सो दीज आर द 4 लर्निंग दैट इन माई लाइफ आई लर्न इन द लास्ट 2 years which will definitely helpful for you lot of you guys. So make sure comment down कि आपने कौन सी philosophical books पढ़ी है. So I will have the idea about it. If you are looking for the more philosophical books, check out this video where I shared a philosophical books. And if you are looking for the books less than 100 pages, check out this video where I shared the books less than 100 pages. That's all for the today one. See you in the next one. Bye bye.